Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I am teaching mathematics of 6th standard. Chapter number 1, Knowing Our Numbers, part 7. In previous video, we had learned exercise 1.2, question 1 and 2. Now today I would teach you remaining sum. Sum number 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Here we can easily say that this sum solved with subtraction. Okay. बिकॉज जो विनर कैंडिडेट है उसके वॉट है 5,77,500 एंड उसके सामने वाली पार्टी के वॉट है 3,48,700. ओके, सो हम क्या करेंगे, जो विनर कैंडिडेट है उसके वॉट में से सामने वाले पार्टी के वॉट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने वॉट से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट सक्सेस हुआ है वो नंबर ऑफ वॉट हमें मिल जाएंगे. ओके, so now number of votes secured by successful candidates equal to 5,77,500 minus number of votes secured by his nearest rival 3,48,700. So we get answer 2,28,800. Therefore the successful candidate won by a margin of 2,28,800 votes. Question 4. Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week, the same month. How much was the sale for the 2 weeks together? ओके, यहाँ दोनों वीक को मिला के कितना सेल हुआ. सो फर्स्ट हम एडिशन करेंगे. नेक्स्ट, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटेस्ट. ओके, बाद में ऐसा पूछा कि दोनों में से कौन से वीक में ज़्यादा सेलिंग हुआ. सो हम दोनों वीक का कंपैरिजन करेंगे एंड लास्ट एंड बाय हाउ मच, और लास्ट में ऐसा पूछा है कि कितना ज़्यादा हुआ है. ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यूजिंग सब्ट्रैक्शन. ओके, वी स्टार्ट. फर्स्ट, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891 प्लस बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक 4,768. सो आंसर 6,86,659. ओके, बाद में ऐसा पूछा है कि कौन से वीक में ज़्यादा हुआ है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि फर्स्ट वीक में 2,85,891 एंड सेकेंड वीक में 4,768. तो ऑब्वियसली 4,768 ग्रेटर देन 2,85,891. Therefore, the sale of second week is greater than that the first week. Okay, and last, how much. Okay, दोनों में से कितना ज़्यादा हुआ है. तो यहाँ बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक 4,768 माइनस बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891. So answer 1,40,877. Therefore 1,40,877 more books were sold in second week. ये सब में हमने 3 प्रोसेस की. फर्स्ट एडिशन, सेकेंड कंपैरिजन एंड थर्ड सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन 5. Find the difference between the greatest and least number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3. Each
only once. Now we find out the greatest 5-digit number, then find out smallest 5-digit number. First, greatest 5-digit number using 62743. So here 7 is a greatest number, so 76432. In now smallest 5-digit number using 62743. So 2, 3, 4, 6, 7. Okay. Here we arrange the number ascending and descending order. Then find out difference. क्या फाइंड करना है? डिफरेंस. ओके, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो 76432 माइनस 23467. सो आंसर 52965. तो ये दोनों नंबर का डिफरेंट क्या आया? 52965. ओके, 52,965. Therefore, the difference is 52,965. Next sum, question 6. A machine on an average manufactures 2,825 screw a day. How many screw did the produce in the month of January 2006? ओके, यहाँ ऐसा कहा है कि एक मशीन 1 डे में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करती है? 2,825. तो जनवरी 2006 में कितने स्क्रू वो प्रोड्यूस करेगी? ओके, तो हमें पता है कि जनवरी मंथ में 31 डेज आते हैं और 1 डे में कितना स्क्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2,825. तो यहाँ इजीली हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2825 मल्टीप्लाई 31. ओके, नाउ सॉल्यूशन. Number of screw manufactured in 1 day 2825. Okay, and number of days in month of January 31 days. So we multiply 2825 into 31. So answer is 87,572. This sum is very easy. Therefore, the machine produced 87,575 screw in the month of January. Question 7. A merchant had 78,592 with her. Okay, एक मर्चेंट के पास कितने अमाउंट है? कितने पैसे हैं? 78,592 इसके पास पैसे है. She placed an order for purchasing 40 radio set at 1200 each. ओके, उसे 40 रेडियो का ऑर्डर देना है और एक रेडियो की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपीज़. ओके, तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द प्रोडक्ट परचेस? ओके, ये मर्चेंट के पास जो अमाउंट है उसमें से वो क्या करता है? 40 रेडियो का ऑर्डर देता है और एक रेडियो कितने का है? 1200 का है. ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे? 1200 इंटू 40. तो रेडियो परचेस करने में उसका कितना अमाउंट स्पेंड होता है वो फाइंड करेंगे. उसके बाद जितना उसके पास अमाउंट है उसमें से रेडियो कितने का परचेस किया वो वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ओके, तो बाद में उसके पास कितने रिमेनिंग अमाउंट रहते हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ सॉल्यूशन. फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इक्वल टू 1200 एंड cost of 40 radio equal to 1200 into 40. So 12 4s are 48. So 48,000. Okay. Now total money with merchant. मर्चेंट के पास कितना अमाउंट है? 78,592 माइनस मनी स्पेंड बाय ऑफ रेडियो. ओके, रेडियो परचेस करने में उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया? 48,000. ओके, सो आंसर इज 30,592. तो मर्चेंट के पास कितना अमाउंट अभी बाकी रहा? 30,592. सो देयरफॉर रुपीज 30,592 विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस. नाउ क्वेश्चन 8.
A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying 56. Okay, by how much was his answer greater than the correct answer? Here एक स्टूडेंट ने क्या किया है, 56 के साथ मल्टीप्लाई करने की जगह 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहले रॉन्ग आंसर हम फाइंड करेंगे, बाद में राइट आंसर फाइंड करेंगे। बाद में ऐसा पूछा कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के साथ हमें रॉन्ग आंसर कंपेयर करना है और दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग आंसर हियर 7,236 into 65. Okay, we know that this multiplication, so answer is 4,70,340. Now we done correct answer here, 7,236 into 56. So we also know this multiplication, so answer is 4,05,260. Okay, now दोनों का हमें क्या निकालना है कि डिफरेंट निकालना है, बिकॉज यहाँ पूछा है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ओके, सो डिफरेंट इन आंसर इज 4,70,340 minus 4,05,260. So answer is 65,124. Next, question number 9. To stitch a shirt 2 meter 50 centimeter clothes is needed. Okay, out of 40 meter cloth, how many shirt can be stitched and how much clothes remain? Okay, यहाँ देखो एक शर्ट स्टिच करने के लिए हमें कितना क्लोथ्स चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास टोटल क्लोथ्स कितना है, 40 मीटर। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने शर्ट हम स्टिच कर सकते हैं, तो दिस सम सॉल्व विथ डिवाइडेड। ओके, एंड बाद में ऐसे फाइंड करना कि वो शर्ट 40 कितने शर्ट स्टिच कर सकते हैं और स्टिच करके भी कितना क्लोथ्स बचता है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहाँ हमें वन शर्ट स्टिच करने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ्स चाहिए। सो पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। 2 इंटू 100 200 प्लस 15, सो 215 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ क्लोथ्स इक्वल टू 40 मीटर। अगेन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मैनी शर्ट वी स्टिच, तो नंबर ऑफ shirts can be stitched equal to 4000 divided by 215, because हमारे पास 4000 लेंथ का क्लोथ्स है और एक शर्ट स्टिच करने में कितना सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए, 250। सो वी यूज डिवाइडेड। वी नो दैट दिस मेथड। ओके, सो हियर 18 and 130. Okay, therefore 18 shirt can be stitched and 130 centimeter clothes will remain. यहाँ हम टोटल 40 मीटर क्लोथ में से 18 शर्ट स्टिच कर सकते हैं और 130 सेंटीमीटर क्लोथ्स हमारे पास बचेगा। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 10. मशीन इज पैक्ड इन बॉक्स each weighing 4 kilogram 500 gram. How many such boxes can be loaded in a car which cannot carry beyond 800 kilogram? Okay, okay, तो आंसर द वेट ऑफ वन बॉक्स। पहले तो एक बॉक्स में
कितना वेट रख सकते हैं? 5 kg 500 ग्राम। ओके, फर्स्ट 1 kg इक्वल टू 1000 किलोग्राम। सो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो 4 किलोग्राम 500 ग्राम। सो 4 इंटू 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। सो 4 इंटू 1000 इक्वल टू 400 ग्राम, सॉरी 4000 ग्राम प्लस 5500 ग्राम। सो आंसर 4000 plus 500 equal to 4500 gram. Now maximum load can be loaded in one equal to 800 kg. अगेन किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 800 इंटू 1000 ग्राम। सो 800 इंटू 1000 ग्राम इक्वल टू 8 lakh ग्राम। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 8 lakh डिवाइडेड बाय 4500. Here we using divided. So 8 lakh divided 4500. So answer is here 177 and 3500. So therefore 177 boxes can be loaded in a car. Okay. Now sum number 10. The distance between the school and the house of a student house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walk both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. Okay, पहले तो स्कूल एंड होम का डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इक्वल टू 1 kilometer 875 meter. Okay, so 1875 kilometer. Then distance between home and school equal to again 1875 kilometer. Okay, so total distance covered by one day equal to 3750 किलोमीटर. ओके, एक दिन में स्टूडेंट स्कूल और घर कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3750 किलोमीटर. तो वो 6 डे में कितना कवर करता है? तो दिस सम is multiplied. So 3750 into 6. So answer 22,500 kilometer. Therefore 22 kilometer 500 meter distance cover in 6 days. Sum number 12. A vessel has 4 liters and 500 millimeters of curd. In how many glasses each of 25 milli capacity can it be filled? First, capacity of the curd in vessel equal to 4 liter and 500 milliliter. Okay, so 4 into 1000 milliliter plus 500 milliliter. So 4 into 1000 4000 plus 500 milliliter. So total 4500 milliliter. Capacity of one glass equal to 25 milliliter. So here we are using divided. So number of glasses can be filled equal to 4500 divided by 25. So here answer is 180. Therefore 180 glasses can be filled by curd. Thank you.